الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو نے جمی بنائی آسماں بنایا، تو نے جمی بنایا آسماں بنایا، ایک حکم دے کر سارا جہاں بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں غسل کے بارے میں بات کیا تھا، پوری بات نہیں ہو پائی تھی کیونکہ لمبا طویل تھا، اس کی وجہ سے۔ اور پھر آج جو ہے غسل ہی کے بارے میں بات کریں جو اہم ضروری ہے، کہ جو کہ ہم یوں ہی جیسے تیسے نہا کے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن پاک صاف نہیں ہو پاتے ہیں، بہت حضرات کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو باریکی چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، اس پہ غور کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اگر بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل جو ہے نہ ہوگا، یعنی غسل کرتے وقت ایک بھی بال اگر سوکھا رہ گیا تو غسل نہ ہوگا۔ اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوگا۔ اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا۔ آپ ناپاک تھے اور آپ نے پانی سر پہ ڈالا پورا اچھی طرح سے ڈال کے، اور ناک میں پانی اور کلی وغیرہ نہیں کیا تو آپ کو جو ہے غسل نہیں ہوگا، پھر سے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر غسل کے بعد یاد آئے فلاں جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں ہے، بلکہ جہاں سوکھی رہ گیا تھا اس کو دھو لے۔ جیسے عموماً غسل کرتے وقت جو ہے ہم نے غسل کی جو ہے فرائض ادا بھی کر چکا ہے، اور کہیں پہ سوکھا خشک رہ گیا ہے شریر کے کسی بھی حصے میں تو آپ اس کو دھو لیں، اور پھر سے آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں۔ یاد آئے کہ یہاں پر جو میرا جو ہے سوکھا رہ گیا ہے تو آپ جو ہے اس جگہ اس کو پانی سے بھگا لیں۔ اگر کلی کرنا بھول گیا تو اب کر لے، اگر ناک میں پانی نہ ڈالا تو اب ڈال لے۔ غرض یہ کہ جو چیزیں رہ گئی ہو اب کرے، نئے سر سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں رہ گئی ہیں، جو چیزیں چھوٹ گئی ہے، آپ جو ہے فوراً اس کو بعد میں یاد آئے تو ترنت کر لیں۔ اب ایسا نہیں کہ آپ نے غسل کیا بھی اور پھر 2-4-5 گھنٹہ کے بعد یاد آ رہا ہے کہ ناک میں پانی اور کلی وغیرہ گلگلا نہیں کیا تب کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فوراً کچھ عرصہ بعد اگر کسی عورت کو بیماری کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا نقصان کرے اور سر کو چھوڑ کر سارا بدن دھو لے تب بھی غسل درست ہوگا۔ کوئی بھی مریض ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بیماری کی پریشانی کی وجہ سے اگر اس کو اندیشہ ہے کہ ہم پانی سے اگر نہائیں گے، سر پہ پانی ڈالیں گے بیمار ہو جائیں گے، تو اس شخص کو چاہیے کہ جو ہے سر کو نہ دھوئے اور باقی حصے کو دھو کے جو ہے اس کی غسل ہو جائے گی۔ یہ کتنی آسان اور کتنا سہل ہے۔ اسلام جو ہے سچویشن کے حساب سے لوگوں کے کتنی رعایتیں ہیں، لیکن ہم اس چیز کو غور فکر نہیں کرتے ہیں۔ تب بھی غسل درست ہو گئے، لیکن جب اچھی ہو جائے تو اب سر دھو لے، پھر سے نہانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اچھے ہو جائیں، بیمار سے اچھے ہو جائیں گے تو پھر آپ جو ہے سر بھی دھو لیں، اور پھر آپ اگر اچھی طرح سے غسل کر لیں تو اچھی بات ہے۔ مثلا اگر عورت کے سر گندے ہوئے نہ ہو تو سب بال کو بھگانا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، جس سے بال جو ہے جوڑا باندھا ہوا ہے اور اس میں جو ہے اس کو کھول کر پانی پہنچائے۔ اگر یوں ہی ایسے پہنچ جاتا تو اچھی بات، لیکن امید کم ہے کیسے پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ بال برابر سوکھا رہ گیا، ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا۔ ایک بھی بال اگر سوکھا رہ جائے گا تو غسل نہ ہوگا۔ اور اگر بال گندے ہوئے تو بالوں کو بھگونا معاف ہے، البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہے۔ اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی پہنچ سکے تو پانی بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچے
ना पहुंच सके तो खोल डालें और बालों को भी भिगो डालें। यानी कहने का मतलब है कि सर का जो जूड़ा है वो बांधा हो, ठीक है। आपको माफ़ है, मतलब माफ़ क्या है कि आप ना खोलें। अगर बगैर खोले हुए अगर हो जाएगा, पानी पहुंच जाएगी तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पानी पहुंचती है तो फिर आपको जो सर का बाल गूंदा हुआ है, बांधा हुआ है, आपको खोलने की ज़रूरत है, आप उसको खोलना पड़ेगा उसको, ओके। औरत को चाहिए कि नथ, बालियों और अंगूठी छल्लों को खूब हिला हिलाकर जो है पानी सुराखों में पहुंचाया जाए, और अगर बालियाँ पहुँचो वगैरह हो तो सुराखों में, यानी चूड़ी वगैरह, बाली वगैरह जो भी पहने हुए हैं आप जो है उसको बाएं दाएं आगे पीछे कर कर पानी पहुंचाएं। उम्मन होता है कि चूड़ी पहना हुआ आदमी और टाइट है, पानी नहीं पहुंच रही है तो गुस्ल फिर जो है गुस्ल नहीं हो पाएगी। इस चीज़ पर ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें आदमी अक्सर जो है भूल कर, ये बड़ा गलती हो जाती है। जब गुस्ल नहीं होगा तो नमाज, फिर आप पाक नहीं है तो फिर नमाज नहीं, फिर वजू भी नहीं है, फिर तिलावत कुरान भी नहीं है, फिर आप कैसे मतलब जो है आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप कैसे अच्छे काम कर सकते हैं नेक्स्ट साल। तो इसलिए पाक का होना तो शतरुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। आपको ईमान जो है पाकीज़ी हासिल करना है। अगर नाखून में आटा सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं हुआ। वाजिब या जब याद आए आटा देखे तो आटा पर छोड़ाकर पानी डालें, और अगर पानी पहुंचने से पहले कोई नमाज पढ़ ली हो तो उसको लौटा दें। उम्मन होता है कि खाना बनाने के समय में आटा गूंदा और हाथ में लग गया और हमने वज़ू कर लिया और ध्यान नहीं है कि इसमें आटा लगा हुआ, पानी नहीं पहुंचा और नमाज़ पढ़ ली। बाद में ध्यान आया कि हमने इसमें हाथ में मेरे में आटा लगा हुआ है और पानी पहुंचा नहीं, फर्ज छूट गया। तो जो नमाज़ पढ़ी गई है उस नमाज को फिर लौटाएं, फिर से आप जो है आटा को छुड़ाएं और उसको जो है फिर से जो है एक और मसला, वज़ू किए, आटा जो है गूंदा हुआ था वो लगा हुआ है, ठीक है, फ़ौरन याद आ गया तो फिर आप उसको छोड़ा के फिर भिगा लें। तो ये जो है गुस्ल की जो है, ये गुस्ल की फ़राइज़ों में से जो चीज़ का अहम ज़रूरी है उसके बाद मसला, हाथ पैर फट गए और उसमें मोम, रोगन या और कोई दवा भर ली तो उसके ऊपर से पानी बहा लेना दुरुस्त है। उसके ऊपर से मसला, कान और नाक में भी ख्याल करके पानी पहुंचाना चाहिए। पानी ना पहुंचेगा तो गुस्ल ना होगा। आपको है कान और नाक में भी ख्याल करके पानी पहुंचाना चाहिए। पानी जो है पानी पहुंचाना चाहिए, ना पहुंचेगा तो गुस्ल ना होगा। अगर नहाने के वक्त कुल्ली नहीं की लेकिन खूब मुंह भर कर पानी पी लिया, ये सारे मुंह पानी पहुंच गया तो भी गुस्ल हो गया। अलबत्ता अगर इस तरह पानी ना पिए कि सारे मुंह में पानी पहुंचे तो ये पीना काफ़ी नहीं है, कुल्ली कर लेना चाहिए। कुल्ली अक्सर औकात में आदमी को कर ही लेना चाहिए। इसलिए अगर सर के बालों में या हाथ पैरों में तेल लगा हुआ है, बदन पर पानी अच्छी तरह नहीं ठहरता बल्कि पड़ते ही ढल जाता है तो उसका कोई हर्ज नहीं है, गुस्ल हो जाएगा। अगर दांतों के बीच में छाली का टुकड़ा फंस गया तो उसको खिलाल से निकाल डालें। अगर उसकी वजह से दांतों में पानी ना पहुंचेगा तो गुस्ल ना होगा। ये अहम मसला है। अगर दांतों के बीच में छाली का टुकड़ा या कोई भी चीज़ फंस गया तो उसको खिलाल से निकाल डालें। अगर उसकी वजह से दांतों में पानी नहीं पहुंचेगा तो गुस्ल ना होगा। मसला, माथे पर फंसा चीनी या बालों में इतना तो गुस्ल करते वक्त हर एज़ा में पानी पहुंचाना जो है वो अहम ज़रूरी है, फ़र्ज है।
आप जब भी आप गुस्ल करें तो हमेशा ध्यान रहे कि हमको किन 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 चीज़ों आपको जो है हर तरह की बात गुस्ल के बारे में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने गुस्ल के बारे में बता रखा है, ये आज भी गुस्ल के बारे में वीडियो बनाए, ये अहम ज़रूरी है। एक इंसान नापाक है, अब उसको नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, उसको पाक साफ रहना है। जब वो नापाक ही ना रहेगा तो ना तो नमाज उसकी होगी, ना तो वजू उसकी होगी, ना तो कुरान वो पढ़ सकता है। तो नापाक होने वाला शख्स को चाहिए अच्छी तरह गुस्ल करे, अच्छी तरह से हर एज़ा को धोए और फिर जाके जो है वजू करे। एक और मसला, गुस्ल हमने कर लिया, गुस्ल कर लिया और उसी वक्त फ़ौरन वजू कर लिए तो फिर हो गया, अब दोबारा जो है वजू करने की ज़रूरत नहीं। तो हर तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हर तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे, मैसेज मिलता रहे, तो हमारा जो चैनल है उस चैनल का नाम ऑफिस इकरा है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हर तरह की दीनी बात पहुंचते रहेंगे, हर तरह के माशाल्लाह हर तरह से वीडियो बनाते रहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ के बारे में कि हमारा जो है तलफ़्फ़ुज़ कैसे अच्छा हो जाए, कुरान कैसे पढ़ें, ज़िक्र अस्कार अल्लाह के करें, बहुत सारे वीडियो जो है बनाया गया भी है। और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इस बात को हम तमाम लोग सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत बख्शें और अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस दुनिया के अंदर खैर का काम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और हमेशा अपनी ज़िंदगी में ज़िक्रुल्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए और ज़बान पर ज़िक्र हो, दिल में फ़िक्र हो। किसी शायर ने लिखा है, मत कर खाक के पुतले पे गुरूर भी नियाज़ी, खुद को खुद ही में झांक कर देख तुझ में रखा क्या है। तो हम क्या है, हमारी औकात, हमारी हैसियत क्या है, कुछ भी नहीं है। आज अरबों खरबों कमाने वाले शख्स भी जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज रिक्शा चलाने वाले भी आदमी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक हदीस से याद आ गया, इसलिए मैं तवील बात नहीं करना चाहता था कि एक शख्स दुनिया के अंदर ऐश व इशरत के साथ एयर कंडीशन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर गोता लगाएगा, यानी जहन्नम के अंदर डुबाएगा, उसको डालेगा और उससे पूछेगा कि तूने कभी दुनिया के अंदर आराम किया है। उसको कभी याद ही नहीं रहेगा हम आराम किए, याद नहीं रहेगा उसको। उसी तरह एक गरीब शख्स जो अपनी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ गुजारता है और हमेशा अल्लाह का ज़िक्र हमको तना करता है, और उस शख्स को तकलीफ़ जो शख्स गुजारता है उस शख्स को जन्नत के अंदर गोता लगाया जाएगा। उससे पूछा जाएगा क्या तूने कभी तकलीफ़ किया है दुनिया में, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये खासियत है, समझ गए होंगे। जो लोग आयश व इशरत में अपनी ज़िंदगी गुजारा उसको जहन्नम में गोता लगाया जाएगा, तकलीफ़ दिया जाएगा। जैसे अब समझे, अभी इस गिलास में पानी जो है, प्यास लगी है, पानी जो है प्यास तेज़ लगी हुई है, ठीक है, पानी नहीं है, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हमको मिल जाता है, यहाँ पे हम जिल्लत में हैं, ठीक है। उसी तरह से फिर हमको अगर इससे भी अच्छा पानी मिल जाएगा तो हमको याद नहीं रहेगा कि प्यासल थे, ठीक है। उसी तरह एक शख्स है जो ऐश इशरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, ठंडा पे ठंडा पी रहा है, ठीक है, और फिर उसको जो है कोई तीता वाला चीज़ का, यानी मानिए कि प्यास की शिद्दत रहेगा और उसको जो है पानी उस टाइम दिया जाए, पानी ना मिले तो उसको वो चीज़ याद आएगा नहीं, वो चीज़ याद नहीं आएगी। इसीलिए जो जिसने भी ऐश इशरत से अपनी ज़िंदगी को खुशगवार ज़िंदगी गुजारी है, जहन्नम के अंदर गोता लगाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुमने ज़िंदगी दुनिया के अंदर आराम किया है, उसको याद ही नहीं रहेगा। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब यही है।
تو یہ سب باتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دن مستقیم پر چلنا اثر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اگلی ویڈیو ملیں گے.